Hello aspirants. So today this question number 6 got tossed in our class. Let's see what's so special about this JEE Main 2021 question. Okay, I found some of the students were finding it difficult to understand the situation that's been presented in the question. जैसे मैं कहता हूँ, you need to imagine the situation correctly first, and then you need to draw proper sketches so that your mind gets enough fuel and gets activated. That's the whole soul process by which you can attempt correctly different questions. So let's see our question number 6 without wasting any more precious time. A circular disc, okay, you need to be very particular about this thing. A circular disc reaches from top to bottom of an inclined plane. Okay, so why not we draw our inclined plane first of all, so that everything remains well settled in our minds. So let's see, we are keeping this as our inclined plane. Okay, and let this be, since it's an inclined plane, let this be theta, though it's not been mentioned in the question, but still we are keeping it theta so that our mind is in a very calm and composed state after looking at the sketch. And this is our circular disc. Okay, so a circular disc reaches from top to bottom of an inclined plane of length L. So the length has been given of this inclined plane, and that is L. Now, two different scenarios have been presented to us. Be very particular about the choice of words, especially when you're dealing with JEE questions. Okay, each and every word has got a significant meaning. Okay, you cannot afford to skip the exact meaning that's being offered by the exact words which are used in the framing of the question. When it slips down the plane, it takes time t1. तो यहाँ हम क्या देखते हैं, कौन सा वर्ड यूज किया गया हुआ है, स्लिप. इसको स्टार बना लीजिए. When it rolls down the plane, it takes time t2. बहुत सिंपल दो सिचुएशन है, दो स्टेटमेंट में वो दोनों सिचुएशन को इस क्वेश्चन ने प्रेजेंट किया है. दूसरा है रोल्स. तो जैसा मैं कहता हूँ, the whole sole purpose of this channel is not to provide solutions, but the idea behind this channel is to provide a deep, well-crafted, well-tailored, neatly tailored, I should say, approach so that you are in a position to conceptually understand the question first and then attempt it correctly and develop certain exceptional troubleshooting skills in engineering terms. So the पहला सिनेरियो के लिए जो चॉइस ऑफ वर्ड है स्लिप्स, एंड सेकंड सिनेरियो के लिए द चॉइस ऑफ वर्ड है रोल्स डाउन. तो as I found in my class that many of the students were finding it difficult to understand कि सर तो ये दोनों सिनेरियो के सेम है, सेम इंक्लाइंड प्लेन है, फ्रिक्शन है कि नहीं है ये दोनों सिनेरियो में. तो देखो भाई, यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, क्वेश्चन फर्स्ट सिनेरियो के लिए द वर्ड that has been used is slips. Slip word physics में हम लोग तब यूज करते हैं when no friction is involved. तो फर्स्ट सिनेरियो में कोई फ्रिक्शन नहीं है. कहाँ नहीं है, ये सर्कुलर डिस्क और इंक्लाइंड प्लेन के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में. और इस केस में जब ये स्लिप करता है, इस ऐसे स्लिप करके टॉप से बॉटम आता है, तो इसको टाइम कितना लगता है स्लिपिंग में, टाइम इसको लगता है t1. और सेकेंड सिनेरियो में जो चॉइस ऑफ वर्ड है रोल्स. रोल, यहाँ प्योर रोलिंग की बात हो रही है, तो जो रोल तभी होगा जब सरफेस में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा. Without friction, you cannot generate rolling action, right? As simple as that. So we can see that this particular question is
वेल क्राफ्टेड, वेरी वेल फ्रेम्ड, आई वुड से सो। दो स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन ने दो डिफरेंट सिनेरियोज को प्रेजेंट किया है बच्चों के सामने। पहले वाले केस में इंक्लाइंड प्लेन और सर्कुलर डिस्क के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में no friction is involved, and that is the reason why it has used the word when it slips down the plane. हो सकता है ये यूज करता है when it slides down the plane, तब सिचुएशन कुछ अलग होती। स्लाइडिंग is a different thing, not exactly similar to slips. slip word डायरेक्टली सिग्निफाई करता है कि कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। और सेकेंड सिनेरियो में रोलिंग का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया गया है। तो रोलिंग तभी होगा जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा। विदाउट फ्रिक्शन यू कैन नॉट जनरेट प्योर रोलिंग, राइट। तो रोलिंग के केस में टाइम लग गया इसको कितना, t2। अब एक रेशियो दिया गया है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एज सिंपल एज दैट। तो लेट्स एनालाइज बोथ द सिचुएशन। फर्स्ट हम लोग स्लीपिंग वाले केस को एनालाइज कर रहे हैं। सपोज कीजिए इसका मास m है, इधर तो mg लगेगा ही इसमें, mg नो डाउट, और इधर n लगेगा नो डाउट। ठीक है, हम लोग स्लिपिंग के केस को एनालाइज कर रहे हैं, कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ये डिस्क सिंपली स्लिप करके टॉप से बॉटम पे आ गया। लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन कितना है, l। टाइम कितना लगा, t1 लगा। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्विकली टेल मी द एक्सेलरेशन दिस circular disk will be experiencing, as simple as that. That will be g sin theta. Okay. इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, 0 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है along the inclined plane, l है। तो can't we write this simple equation of motion, 0 into t1 plus half g sin theta t1 स्क्वायर। यहां से हमें t1 की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ गया t1, जल्दी से बताइए। आ गया आपका 2l बाई जी साइन थीटा का स्क्वायर रूट। अब आते हैं हम लोग रोलिंग के केस को एनालाइज करते हैं। किसको, रोलिंग के केस को। रोलिंग तभी होगा जब फ्रिक्शन होगा। विदाउट फ्रिक्शन नॉट पॉसिबल टू रोल द डिस्क। एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन तो जी साइन थीटा ही होगा। जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में अलोंग एट द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू योर हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। ये कहाँ पे लगेगा ये फोर्स, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द डिस्क। सो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुली आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर, इवन सर्कुलर मोशन और साथ ही साथ रोटेशनल, सेंटर ऑफ मास, 3-4 चैप्टर के रस को निचोड़ के ये क्वेश्चन बनाया गया है। जब भी आप क्वेश्चन हैंडल करते हैं, ट्राई टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो, because it takes hell lot of time to frame such beautiful and imaginative questions. तो सेंटर ऑफ मास पे क्या फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा। फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस पे। किसके कॉन्टैक्ट सरफेस पे, सर्कुलर डिस्क और इंक्लाइन प्लेन पे, तभी रोलिंग एग्जिबिट करेगा। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, इस पे भी काफ़ी बच्चों को काफ़ी समस्या हुई थी। तो वी फाउंड कि इट्स बेटर टू एनालाइज द सिचुएशन in a more programmed fashion. So let's understand the situation. थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं कि माइंड को समस्या नहीं होनी चाहिए, राइट। खेल तो पूरा माइंड का है। ये सब जितना भी ड्राइंग इक्वेशन ये सब कर रहे हैं, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, माइंड को समझाने के लिए। एक बार माइंड कॉन्सेप्ट समझ गया उसके बाद तो चलिए। तो रोलिंग हो रहा है, सेंटर ऑफ मास पे आपने लगा दिया फोर्स। जस्ट अ सेकेंड, सेंटर ऑफ मास पे आपने लगा दिया कितना, mg sin थीटा। अब ये डिस्क को रोल भी कराना है आपको। तो जब रोल आप कराइएगा
तो यू नीड टू जनरेट, अगर इस डायरेक्शन में रोलिंग हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोल करके ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम रीच करेगा ये सर्कुलर डिस्क। तो जब ऐसा होगा एंटी क्लॉकवाइज रोलिंग, you need to generate about center of mass. Suppose try to imagine yourself sitting at the center of mass, okay? CM पे आप बैठे हुए हैं and you need to generate a torque which will cause a rolling in anti-clockwise direction. तो वो टॉर्क कौन सा होगा? mg sin थीटा का कुछ टॉर्क होगा अबाउट CM? नहीं, कुछ नहीं होगा। टॉर्क ऑफ mg sin थीटा अबाउट CM विल बी 0, क्योंकि r का कुछ वैल्यू है ही नहीं। टॉर्क इज r क्रॉस f, ओके? तो mg sin थीटा का टॉर्क जो होगा वो होगा mg sin थीटा के चलते जो टॉर्क आएगा मेरा वो होगा 0। मगर रोलिंग हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कौन करवाएगा इसको रोलिंग? द ओनली ऑप्शन यू आर लेफ्ट विथ इज टू apply friction in this direction, which will generate an anti-clockwise torque, causing the circular disc to roll in anti-clockwise direction during its descent from top to bottom of the inclined plane. I hope you all are in agreement. Because अगर आप बोलिए कि नहीं सर मैं इधर ले लेता हूँ फ्रिक्शन, ले लीजिए आपकी मर्जी, और इधर लीजिएगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे जनरेट कर रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास? क्योंकि रोलिंग जो हो रहा है ये अबाउट सेंटर ऑफ मास वी आर एनालाइजिंग। अबाउट सीएम जब एनालिसिस कर रहे हैं तो रोलिंग कैसे आप जनरेट कीजिएगा अगर फ्रिक्शन को फॉरवर्ड लीजिएगा तो? नॉट पॉसिबल। सो दिस चॉइस ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन इज रॉन्ग। तो आपको फ्रिक्शन को बैकवर्ड लगाना होगा, ओके? जहां आपने बैकवर्ड लगाया यू कैन जनरेट and formulate some beautiful equations. mg sin theta minus f is equal to ma, that is the acceleration along, इसको हम लोग a1 मान लेते हैं। स्लिपिंग के केस में एक्सेलरेशन g sin थीटा था, इसको हम लोग a2 मान लेते हैं, राइट? और when we talk about rotational mechanics, हमें सिंपल इक्वेशन पता है क्या? टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये एक इक्वेशन इससे हम लोग जनरेट करते हैं। टॉर्क जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट हो रहा है वो एफ आर हो रहा है, क्योंकि आर वेक्टर आपका क्या ऐसा है, ऐसा है आर वेक्टर। दिस इज योर आर वेक्टर एंड दिस इज योर representing the friction, okay? So r cross f जो कीजिएगा आप, that will be rf sin theta, and theta over here is 90 degrees, so you are left with an anticlockwise torque having magnitude fr, and that should be equal to I alpha from our rotational mechanics equation. I is moment of inertia about center of mass, which is mr square by 2 for a circular disc, correct? And alpha is the angular acceleration when the circular disc is descending from top to bottom, exhibiting pure rolling of angular acceleration. How much? Alpha. So we can write alpha as a2 over r, simple rotational mechanics का equation इस्तेमाल करके, and this gives me एक इक्वेशन आपका ये आ गया और एक इक्वेशन टॉर्क वाला है। इससे आपको कितना आ जाएगा? फ्रिक्शन का वैल्यू, ये आपको क्या देगा? फ्रिक्शन का वैल्यू एज सिंपल एज दैट ma2/2। देख लीजिए आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, you will be left with ma2/2। now all you have to do is substitute this value of f in our parent equation. कौन सा parent equation था? in the case of rolling, this one. So now let's see, mg sin theta will be now equal to 3ma2/2. This fetches you the acceleration in the case of pure rolling descent
as mm cancel out हो जाएगा, you will be left with 2g sin theta by 3. Again, pure rolling के केस में भी if you try to find out the initial velocity of descent, initial velocity of descent क्या है सेंटर ऑफ मास का, अगेन 0 मीटर पर सेकेंड. तो अगेन आपका डिस्प्लेसमेंट तो एल ही कवर करना है और आप लिख दीजिए 0 इंटू T2 राइट प्लस हाफ A2 T2 स्क्वायर. इससे जल्दी से बताइए T2 का वैल्यू कितना आ गया आपका. T2 का वैल्यू आ जाएगा आपका ट्वाइस L ओवर A2. A2 आपका हो गया कितना 2g sin थीटा इंटू 3 का रूट. तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, इससे आपको मिल जाएगा ये वैल्यू. देखिए क्या कौन सा वैल्यू आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा. T2 का वैल्यू आ गया आपका 3L बाई जी साइन थीटा. ये आ गया आपका T2 का वैल्यू. ओके, सो नाउ यू आर हैविंग T1 का वैल्यू and you are having T2 का वैल्यू as रूट ओवर 3L अपॉन जी साइन थीटा. अब T2 बाई T1 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, देखिए इक्वेशन रूट ओवर 3 बाई एक्स कीजिए. T2 बाई T1, try to substitute the values of T2 and T1 as you have received in this question, so you will get an expression like 3 over 2. बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा. यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड डू द सिंपल मैथ्स. जी साइन थीटा वगैरह सारा कैंसिल आउट हो जाएगा. इवन एल विल गेट कैंसिल आउट एंड विल बी लेफ्ट विथ ओनली स्क्वायर रूट ओवर 3 over 2. ओके, so that gives you the value of x as 2. I hope the solution and the approach which we took was well understood, and मुझे ऐसा लगता है कि मतलब it's a simple question, but only thing it's trying to test is whether you are reading the questions correctly, whether you are particular about the various choice of words used in physics, and how deep is your understanding when you are trying to deal with two different situations, one without friction, one with friction, exhibiting pure rolling. Okay, and direction of friction was also a very crucial thing. You need to determine that thing correctly. कभी कभी बच्चों को समस्या हो जाती है. मान लो अगर एक प्लेन सरफेस पे एक बॉल है ऐसा, मैं बोलूँगा यहाँ फ्रिक्शन है सरफेस पे, इस पॉइंट टॉप पॉइंट पे आप एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं और प्योर रोलिंग ये स्फेरिकल बॉल एग्जिबिट कर रहा है. अब बताइए आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा. तो you need to be very particular about understanding the concept of friction. Friction का whole sole purpose है to facilitate pure rolling, also to oppose the relative motion existing between the contact surfaces, right? तो अगर इस तरह का सिचुएशन आपको दे दिया है कि स्फेरिकल बॉल दे दिया, टॉप पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्योर रोलिंग ये स्फीयर एग्जिबिट कर रहा है. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एज वेल. कैसे आप डिटरमाइन कीजिएगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन. आप देखिए, आप बैठ जाइए सरफेस पे, फ्रिक्शन वाला सरफेस है, इसलिए स्केच में हम लोग ऐसे ऐसे स्मॉल लाइंस बना देते हैं टू शो दैट दिस पर्टिकुलर सरफेस इज नॉट फ्रिक्शनलेस बट हैविंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन है तो एक आदमी बैठ जाइए आप सरफेस पे, एक आदमी बैठ जाइए स्फेरिकल बॉल के सरफेस पे जो कि कांटेक्ट बना रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ. अब जब प्योर रोलिंग हो रहा है तो उस वक्त क्या सिचुएशन है, उस वक्त जो स्फेरिकल बॉल पे है उसका डायरेक्शन इधर है जाने का,
So definitely कायदे से as per the law of friction which has to oppose the relative motion between the contact surface, आपको friction को इधर लगाना होगा इस केस में। ऑल्सो साथ में आपको ये भी देखना है कि प्योर रोलिंग के लिए दो टॉर्क यहाँ जनरेट हो रही है। अगर फ्रिक्शन को आपने फॉरवर्ड लगाया है तो देखिए क्लॉकवाइज टॉर्क ये फोर्स जनरेट करेगा, जिसका वैल्यू होगा कितना बताइए, अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगर यहाँ सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं तो यू विल एक्सपीरियंस कि ये जो रोलिंग हो रहा है स्फेरिकल बॉल का इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ टू टॉर्क्स। कौन कौन से टॉर्क? एक टॉर्क है जो क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा एफ आर, और साथ ही साथ एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन जिसका वैल्यू हो रहा है एफ आर। तो रिजल्टेंट टॉर्क कितना आपका आ गया एफ आर माइनस एफ आर, एंड दैट विल बी responsible फॉर योर प्योर रोलिंग आई अल्फा, करेक्ट, अबाउट सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ अबाउट सेंटर ऑफ मास ले रहा है। वही अगर आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेट कीजिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू दिस बाय यूटिलाइजिंग विच इक्वेशन, बहुत फेमस इक्वेशन है रोटेशनल मैकेनिक्स का, हम लोग सबको जानते हैं, आई सी एम आई अबाउट एक्स एक्सिस जो होता है आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर होता है, करेक्ट। तो आप ये इक्वेशन लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगा के ले सकते हैं। इन दैट केस यू विल टेक ओनली द क्लॉकवाइज टॉर्क ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स एफ, दैट मींस एफ मल्टीप्लाइड बाय 2r, और टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस केस में जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का तो कोई टॉर्क ही नहीं होगा अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयर इज नो आर वेक्टर फॉर फ्रिक। बट यहाँ जो इक्वेशन हम लोग लिखे हैं वो अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक क्लॉकवाइज टॉर्क है एफ कैपिटल एफ आर और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है स्मॉल एफ आर। तो रिजल्टेंट टॉर्क कितना हो जाएगा एफ आर कैपिटल एफ आर माइनस स्मॉल एफ आर, दैट शुड बी इक्वल टू योर आई अल्फा। ध्यान से सोचिए, आप ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या इक्वेशन लिखिएगा, एफ प्लस एफ इज एम ए, यानी ये दोनों फोर्स सेंटर मास को एक्सेलरेट कर रहा है ऐसे, और रिजल्टेंट टॉर्क रोटेशन या रोलिंग इंड्यूस कर रहा है। अब प्योर रोलिंग एग्जिबिट करने के लिए सिंपल सा बात है कि योर लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू योर एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम्स द आर, यही होगा तभी ये संभव है। कुछ बच्चों ने क्लास में कहा, इनफैक्ट देयर इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, सर ये वाला इंक्लाइंड पिन फ्रिक्शन को पीछे ले लिया तो ये वाले में फ्रिक्शन को आगे क्यों ले रहे हैं, इसमें भी पीछे लगाइए सर, फ्रिक्शन लगा के देखिए क्या होगा। दोनों फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स एफ, ये दोनों किस तरह का टॉर्क जनरेट करेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क। अब ये दोनों अगर क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है जिसके चलते बॉल का रोलिंग हो रहा है, तो डोंट यू थिंक वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी टू मच, बिकॉज ऑफ अगर यहाँ हम प्लस कर दें अगर हम, तब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा एफ आर प्लस एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा। इस केस में अल्फा का वैल्यू बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाएगा एंड दिस पर्टिकुलर कंडीशन वॉन्ट बी मेट। प्योर रोलिंग के लिए ये चीज मीट होना अनिवार्य है, यू कैनॉट स्केप फ्रॉम दिस थिंग। अगर ये दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज है तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा, प्लस अगर इस तरह का सिचुएशन होगा तो आपका ट्रांसलेशन मोशन का इक्वेशन एफ माइनस एफ हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू एम ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन भी घट जाएगा, यानी लीनियर एक्सेलरेशन घट गया, अल्फा का वैल्यू शूट अप हो गया, और ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगा।
इसलिए रोलिंग एग्जिबिट ही नहीं कर सकता इस तरह का सिचुएशन में. सो यू नीड टू बी वेरी चूजी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. यू नीड टू एनालाइज इट करेक्टली. यू नीड टू थिंक डीपली. और ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों इक्वेशन जो है आपको हेल्प करेंगे. एक टॉर्क वाला इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एक रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिससे कि आप will be able to correctly justify your choice of direction for the friction. Okay, so I hope things are pretty much clear over here. I hope you enjoyed the show. I hope you learned how to crack questions like that, not just solve it blindly, but to understand deeply the beauty of the question and display your exceptional troubleshooting skills, as I always say. Thanks for being part of this show. I really appreciate your time which you have put in. And understanding part तो पूरा clear होगा. Even I think एक approach और लिया जा सकता था about the point of contact, but try to equate torque about center of mass. That is a more prudent approach. Okay, चलो, please like and subscribe and press the bell icon. Thank you.